the third part in summer vacation of continuity and differentiability. As I said, I am going to discuss some more questions of exercise 5.6. So in the continuation of the last two videos, I am going to take the question number 7 as x is equal to sine cube t by root under cos 2t and y equal to cos cube t root under again cos 2t. What do we see? X and y are the function of t, and in both the case the denominator is going to be same. So, and some sort of complication is here. Okay, so first one by one I'm going to try to find the differentiation. Again, in order to find dy by dx, first we have to find dx by dt, since x is the function of t and y is also a function of t. So what should be dx by dt? Quotient rule. Directly, square of the denominator, that is cos 2t. डिनोमिनेटर को छोड़ते हैं हम लोग पहले पार्ट में, एंड डी ऑफ साइन क्यूब टी. साइन क्यूब टी, अगेन वी आर गोइंग इन चेन रूल. देन साइन क्यूब टी को छोड़ा एंड डी ऑफ रूट अंडर कॉस 2t. ओके, just think, I am going to directly do using chain rule. Cos 2t root cos 2t sin cube t, and that is x cube. X cube is 3x square. So ddt, differentiation of this function with respect to is nothing but 3 sin square t. 3 sin square t. But since sin t is not t, so ddt of t, dt of sin t, that is cos t. चेन रूल हमने यहाँ पर डायरेक्ट लगा दिया. माइनस साइन क्यूब टी. नाउ व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स? यू नो, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स इज नथिंग बट, इसका डी डी एक्स क्या होता है? इसका डी डी एक्स होता है 1/2 रूट एक्स. आप करके देख लेना. सो वेन एवर यू आर गोइंग टू फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ सम रूट कॉस 2t, you just write down the differentiation of root cos 2t is 1/2 root cos 2t. But again cos 2t is not x, so dt of cos 2t यहाँ पर हमने लिख दिया. अभी फिलहाल आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो. ओके, नाउ here, okay, write down 3 sin square t cos t root excuse me, cos t cos 2t minus sin cube t cos 2t is minus sin 2t. And since 2t is other than t, so dd of 2t is then nothing but 2 root under cos 2t divided by cos 2t. 2 or 2 cancel. Now here I am going to take LCM. रूट cos 2t ऊपर में डिनोमिनेटर में अगर लिया अगर LCM, तो ये इसके साथ इंटू होकर इसका स्क्वायर रूट को हटा देगा. सो व्हाट वी हैव 3 sin square t cos t and cos 2t minus minus plus sin cube t sin 2t, and then एलसीएम हुआ इसके साथ आ गया. आप इसको लिख सकते हो cos 2t का पावर 3/2. यहाँ 1, इसका 1/2, 3/2. फर्दर अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, है ना. फिलहाल आप इसको इतना जान लो कि ये इतना है. ठीक है ना. सो आई एम गोइंग टू राइट it in somewhere like this one, that dx by dt
I have 3 sin square t cos 2t and plus sin cube t sin 2t cos 2t to the power 3 by 2. We are going to 3 by 2 we are going to use somewhere. चूँकि मैं इसे रब कर दूंगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या था, but you just leave some space here in your note. Now I am going to take dy by dt. dy by dt यानी ddt of cos क्यूब t, बाकी सब तो साइन क्यूब है, यहाँ पर cos क्यूब है, बाकी सब तो वही चीज़ है. तो क्या करें, cos 2t हो जाएगा, रूट cos 2t एंड देन ddt ऑफ cos क्यूब t माइनस cos क्यूब t ddt ऑफ रूट cos 2t. Okay. And after that, this is nothing but dy by dt. Cos 2t, 3 cos square t and cos t का माइनस sin t, चेन रूल, माइनस cos क्यूब t 1 by 2 रूट cos 2t and cos 2t का माइनस 2 sin 2t directly and whole divided by cos 2t. These two cancel. Now this is minus 3 cos square t sin t. I am taking LCM, so cos 2t. This minus and this minus plus cos cube t sin 2t and divided by cos 2t raised to the power 3 by 2. Okay. Now from here we can get dy by dx. From here we can get dy by dx. What is dy by dx? dy by dx is dy by dt dx by dt. dy by dx is here. What is? Minus 3 cos square t sin t cos 2t plus cos cube t sin 2t divided by cos 2t to the power 3 by 2 and then whole divided by what we have here in this part, that is 3 sin square t cos 2t and plus sin cube t sin 2t again divided by cos 2t whole to the power 3 by 2. Okay. Now यहाँ से क्या हो गया, ये तो ख़त्म हो गया सर. तो अब हमारे पास जो dy by dx है वो क्या है, ऊपर में माइनस 3 cos square t sin t cos 2t plus cos cube t sin 2t divided by 3 sin square t cos 2t plus sin cube t sin 2t. ओके. अगर आप इसका आंसर यहाँ छोड़ते हो तो बहुत सारा पार्ट आपका छूट जाता है सिंप्लीफिकेशन का. तो क्या करना है हमें, ये हमारा dy by dx है. ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. sin 2t का तो बेटा एक ही फॉर्मूला है, 2 sin t cos t. But cos 2t either you have 2 cos square t minus sin square t or 2 cos square t minus 1 or 1 minus 2 sin square t. Okay or not? So क्या करना है हमें, देखते हैं. यहाँ 3 cos स्क्वायर है, यहाँ cos क्यूब है, sin 2t है, cos कॉमन लिया जा सकता है और यहाँ से sin कॉमन लिया जा सकता है. तो हम लोग पहले उसको ले लेते हैं. ऊपर में लिया हमने cos स्क्वायर पहले, ठीक है ना. तो माइनस 3 sin t cos 2t
प्लस कॉस स्क्वायर ले लिया कॉस टी, और इसको लिख लेते हैं साइन टू टी, सॉरी साइन टी कॉस टी। नीचे से हमने लिया साइन स्क्वायर टी कॉमन, तो 3 कॉस टी कॉस टू टी प्लस साइन टी, और ये लिखते हैं 2 साइन टी कॉस टी। ओके, देखो कॉस स्क्वायर टी बाई साइन स्क्वायर टी इट इज कॉट स्क्वायर टी। ओके, हो गया। यहाँ पर लिखें तो लिखे, नहीं लिखना नहीं भी जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कि हम इसको लिखें ही। ठीक है, हो सकता है कि हमें फिर इसकी ज़रूरत ना पड़े लिखने के लिए, हम इसको हटा लें। चलिए अभी नहीं लिखते हैं, कॉस स्क्वायर ही रहने देते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ सकता है। देखो यहाँ पर 2 साइन टी कॉस स्क्वायर टी बनता है, 2 साइन टी कॉस स्क्वायर टी, ठीक है ना। यू कैन राइट डाउन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो 2 साइन टी बनेगा। यहाँ से देखो हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया, -3 साइन टी, और इसको मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ये भी हमने साइन में, टोटल हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया इसको, देख रहे ना। तो देखिए यहाँ से 3 है ना, -3 साइन टी, यहाँ से +2 साइन टी, यहाँ से 6 साइन क्यूब टी, यहाँ से 2 साइन स्क्वायर टी। गुड, बट व्हाट वी हैव, एक साइन तो रह जा रहा है ना, थोड़ा सा गड़बड़ है। तो क्या करते हैं, चलिए देखिए एक दूसरा चीज़ सोचते हैं। 2 कॉस स्क्वायर टी -1, और इसको कॉस स्क्वायर ही रहने देते हैं, क्या होता है देखते हैं। लेट अस ट्राई करने में क्या जाता है। नीचे ऊपर हमने कॉस स्क्वायर बदला, नीचे हम साइन बदलते हैं, साइन टी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी कॉस टी। ब्रेक करते हैं, -6 साइन टी कॉस स्क्वायर टी प्लस 3 साइन टी प्लस 2, तो इस 2 को लेके अगर हम करें तो ये 4 हो जाएगा, मेरे को लगता है 4 हो गया, ठीक है ना। अब साइन स्क्वायर टी 3 साइन टी -6 साइन क्यूब, कॉस टी कहाँ गया यहाँ पर, ये कॉस टी था यार, सॉरी। तो 3 कॉस टी और -6 कॉस टी साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस टी, सो -4 कॉस क्यू स्क्वायर, क्या था सॉरी, कॉस टी साइन स्क्वायर टी। एम आई राइट? यस। देखते हैं क्या होता है, कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। चलिए मिटाते। Here I am going to take sine common, cos square t sine -4 cos square t plus 3, again cos common, sin square t cos t, 3 minus 4 sin square t, and then 1 and 1 cos को अंदर ले जाते हैं, -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t, 3 sin t, इधर sin t को अंदर ले जाते हैं, 4 sin क्यूब t, माइनस कॉमन लीजिए,
you will get minus cos 3t sin 3t. So finally we have minus cot 3t. Okay, so dy by dx is, you can simplify it by another method, by another. If I am not going to take this exam, this common, you will do easily. One more question. Question number 11. X is, this is question number 11. X is equal to root under a to the power sin inverse t, y equal to root under a to the power cos inverse c. So here I am going to direct take dx by dt. Root, so simply this can be written. But since this is other than x, so can write the dx of a to the power sin inverse t. Okay, 1 by, this is what, x, so you can write here 2x. A to the power x is, what is the ddx of a to the power x? Ax log a. So it is a sin inverse t log a, but again this is not x, so ddx of sin inverse t, sin inverse t, actually t में है तो this is not t, other than t, so इसका dd लगा दिया. So 1 by 2x, it is x, then what is a sin root, squaring it you will get x square log a. And what is the ddt of sin inverse t? It is nothing but root under 1 minus t square, 1 by root under 1 minus t square. So we have x log a by x cancel, 2 root under 1 minus t square. And in the same way, if you are going to find out dy by dt, you will get 1 by 2 a cos inverse t, then ddt of a cos inverse t, simply 1 by 2 y, and this is 1 by, इसका क्या होगा, ax, so a cos inverse t log a, and then ddt of cos inverse t. The same way, 1 by 2y, and this is y square log a, and what is the ddt of cos inverse t? It is minus 1 by root under 1 minus t square. So finally we have y log a minus divided by 2 root under 1 minus t square. Okay, so what is dy by dx? Dy by dx is dy by dt dx by dt. Dy by dt is this one, so I am just taking here this one, and dx by dt is this one, x log a 2 root under 1 minus t square, cancel, log a cancel, minus y by x, so answer is minus y by x. So this is the proof of the question number 11. Okay, वीडियो को अगर ठीक से देखोगे आपको सोल्यूशन पता चलेगा. ये पीडीएफ फाइल है नहीं, लाइन बाय लाइन देखेंगे. जैसे दिस पार्ट को हमने यूज़ कर लिया डायरेक्टली, ये यहाँ के ख़त्म होता है, इसको हमने फिर से नहीं लिखा, इसी को यहाँ पर यूज़ कर लिया. यू विल फाइंड द सॉल्यूशन. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. I have discussed in previous video how can you find the double differentiation. Double differentiation. So second order derivative. Second order derivative. If y is equal to fx dy by dx f dash x, then ddx of dy by dx is nothing but f double dash x. You can simply d square y by dx square. ऊपर में d पे पावर, नीचे में x पे पावर, f dash x और y2 और y double dash और d square y. You can. Okay. So these are the different type of
notation, and we have to perform double differentiation. So in order to nothing you have to do, simply take a function, given function, find its differentiation. Like the first question of exercise 5.7, y is equal to x square plus 3x plus 2. Differentiate with respect to x. What do you get? Dy by dx. Okay. So dy by dx of x square, ddx of x square is 2x and plus 3. Then again differentiate. Here function is 2x plus 3. This is as a whole function. Differentiate with respect to x. Yani ddx of dy by dx is equal to ddx of 2x plus 3. 2x plus 3. This becomes d square y by dx square as 2x, 2 and 3. So ddx. अब इसका भी अगर आपको ट्रिपल करना हो तो क्या करोगे? What is d cube y by dx cube? That is, इसको एक बार और हम डिफ्रेंशिएट करते हैं. 0. अब इसके बाद का सारा 0 हो जाएगा. सो सेकेंड ऑर्डर का पॉलिनोमियल था तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक तो कुछ आया, और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में दैट मीन्स अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में जाके 0 होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. वन मोर क्वेश्चन. As you see, e to the power 6x cos 3x. Y is e to the power 6x cos 3x. मजेदार क्वेश्चन. डिफरेंशिएट करते हैं. dy by dx e 6x ddx of cos 3x. फिर cos 3x ddx of e 6x. ओके. सो e 6x साइन cos 3x का हो गया माइनस साइन 3x और 3x का हो गया फिर 3. cos 3x e 6x इंटू e 6x और 6x का हो गया 6. सो फाइनली वी हैव माइनस 3 साइन 3x e 6x प्लस 6 e 6x cos 3x. ओके. अब देखो एक बार और करना है हमें. तो एक बार और करने के लिए फिर से यहाँ पर भी लगेगा डिफ्रेंशिएशन, फिर यहाँ से भी. इसको हम सीधे सीधे y मान लेते हैं. ये y है ही. सो इफ यू आर गोइंग टू फाइंड डबल डिफ्रेंशिएशन, you just write down ddx of minus 3 sin 3x cos 6x and 6 into dy by dx, as it is what? y. ये क्या था? y था. तो इसका डिफ्रेंशिएशन dy by dx हो गया. नाउ माइनस 3 साइन 3x को छोड़ दिया, cos ECA e to the power cx e to the power cx into 6. फिर माइनस 3 बाहर है, e 6x को छोड़ा, साइन 3x का, cos 3x और 3x का 3. क्लियर. एंड देन प्लस 6 डिवाइड बाई dx. अभी यहाँ पर छोड़ दें, बाद में जो लाना होगा लाएंगे. नो माइनस 18 e 6x sin 3x, again minus minus 3, so 9y. Okay. And this is 6 divided by dx, so 6 into minus 3 लिखते हैं आप, sin 3x e 6x, और that is plus 6y. ओके. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. ये सेम चीज़ है, माइनस माइनस 18, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. माइनस 9y एंड माइनस 36y, माइनस 45y हो जाएगा. सो विल गेट द आंसर. आंसर इज व्हाट? 5.7. क्वेश्चन नंबर 7. हाँ, कुछ आ गया. 9 e का पावर 6x 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x आ जाएगा. कोशिश कीजिएगा तो आ जाएगा. ठीक है ना.
you will find the answer, exact answer, ddx of this plus 6 into ddx of this, इसका dy by dx ये कंप्लीट फिर से लिखा जाएगा, ये पूरा का पूरा 6 इंटू दिस वन, और इसको एक्सपेंड करेंगे, ये हमारा हो गया y 3y, यहाँ हमने 3y एक्सपेंड, एक्चुअली इसको एक्सपेंड करके माइनस 9y लिख दिया, इसको एक्सपेंड करके लिख दिया, यहाँ माइनस 6 नहीं सॉरी ये प्लस 6 था, है ना, प्लस 6 हो गया, तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद आप सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक। Sometimes you are required to prove that like this one. Question number 11, y equal to 5 cos x minus 3 sin x. अब प्रूफ करना है आपको डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई एच ज़ीरो, ये प्रूफ करना है। ओके, डिफ्रेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स, 5 cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, 3 sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर डबल डिफ्रेंशिएट किया, 5 माइनस sin x का cos x माइनस 3 cos x का माइनस sin x, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, माइनस 5 cos x एंड प्लस 3 sin x। ओके, इफ यू टेक माइनस कॉमन, 5 cos x माइनस 3 sin x, दैट इज माइनस, ये क्या है y, किसके बराबर भाई, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सो इस y को ट्रांसपोज करो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बिकम्स 0 एंड दिस इज टू बी प्रूव्ड। डन। So this is the question number 11 of exercise 5. Next, again in these very questions we are asked that one question number, y is cos inverse x, okay, and you have to find out dy by dx, dy square y, d square y by dx square in terms of y alone, in terms of y alone, there is no x. How can you do it? Very good. dy by dx. So if you are going to write down that it is x equal to cos y and then differentiate with respect to x. So this is 1, cos y is minus sin y and y is other than x, so dy by dx. So what is dy by dx? Dy by dx is nothing but minus 1 by sin y, that is minus cosec y. So we have this done in terms of y only. So there is no function of x here. y means खाली y नहीं होना चाहिए, y का function होना चाहिए. Okay. So this is the question number 12 of exercise 5.7. Next question is in terms of one more thing here, only dy by, we are required to find, okay, again differentiate करो यार, ये छूट ही गया, ddx of dy by dx means ddx of minus cosec y, okay, d square y by dx square माइनस प्लस हो जाएगा cosec y into cot y and then dy by dx, then dy by dx, and dy by dx is what? Dy by dx is minus cosec y. So in the next part we have to write down, माइनस लग गया, एक cosec y आ गया तो हो गया cosec square y into cot y. ये केवल आंसर था dy by dx का. We are required to find double differentiation. Okay, so this is the question number 12. Now this is the complete solution of question number 12. Okay, next part of the question. It is you can take y equal to 3 cos log x plus 4 sin log x, and you are required to prove that x square y2, y2 means double differentiation, x y1, this is d square y by dx square, y1
dy by dx प्लस y इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो व्हाट इज dy by dx, y1 लिख देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 cos का माइनस साइन ऑफ log x एंड देन log x का 1/x, फिर 4 cos log x एंड फिर log x का ddx 1/x, चेन रूल। नाउ हियर वी व्हाट वी डू, transpose y1 on the left hand side, you will get minus 3 sin log x plus 4 cos log x. What we have done, dy by dx, dy by dx of 3 cos log x, 3 constant बाहर, cos of x is minus sin x, but x is other than, here log x is other than x, so ddx of log x is 1/x. Same sin log x का, sin x का cos x होता है तो sin log x का cos log x कर दिया, and then log x का डिफरेंशिएशन 1/x of chain rule, so 1/x यहाँ से कॉमन लेके इधर ट्रांसपोज कर दिया। नाउ अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ थोड़ा सा हम ऐसे ही इलेबोरेट कर दे रहे हैं अलग अलग, ताकि थोड़ा सा बीच बीच में रिकॉल होता रहे कि हम लोगों ने क्या किया। ओके, सो प्रोडक्ट रूल इज हियर, x ddx of y, that means y2 plus y1 छोड़ा, ddx of 1, that is 1, minus 3 cos log x and log x का 1/x, फिर ये माइनस हो जाएगा cos के कारण, माइनस 4 sin log x और log x का 1/x, फिर x को इधर ट्रांसपोज करो आप, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 इज इक्वल टू, माइनस माइनस कॉमन ले लीजिए, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, जरा राइट हैंड साइड को देखो क्या है, y है या नहीं, तो इट इज़ माइनस y। अब सबको एक तरफ ट्रांसपोज कर लिया, x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y इक्वल टू 0, और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ द exercise 5 point. Okay, now moving in next part of the question, you can do anyone next भी कर सकते हैं, next ही करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 14, next question number 14, देखो एक ही इक्वेशन से अगर हम कुछ और इक्वेशंस निकालते हैं, यहाँ पर एक फैक्ट आपको मिलेगा, यहाँ पर क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है y इक्वल टू a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, और हमें प्रूफ क्या करना है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0, ये प्रूफ करना है। ओके, लेट अस ट्राई टू डू इट। फर्स्ट एक बार डी वाई बाई डी एक्स, ए ई एम एक्स डायरेक्टली थोड़ा कर रहा हूँ, और एम एक्स का एम प्लस बी ई एन एक्स और एन एक्स का एन। सो व्हाट वी हैव, ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डबल डिफ्रेंशिएशन, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अगेन ए एम इज कॉन्स्टेंट, सो ए एम ई एम एक्स का ई एम एक्स, बट एम एक्स इज अदर देन एक्स, सो डी डी एक्स ऑफ एम एक्स इज एम, सो एम स्क्वायर प्लस बी एन ई एन एक्स का ई एन एक्स, बट एन एक्स इज अदर देन एक्स, सो इसका डिफ्रेंशिएशन चेन रूल से एन, सो एन स्क्वायर, ये डबल डिफ्रेंशिएशन हो गया। सो वी हैव वाई a into e to the power mx plus b into e to the power nx, dy by dx
ए एम ई टू द पावर एम एक्स, ई टू द पावर एम एक्स, ई टू द पावर एम एक्स, ए ई टू द पावर एम एक्स, तीनों एक्सप्रेशन में है। तो यहाँ पर क्या है कि हेयर this dy square y by dx square can be expressed in linear combination of these two. Any one of these three can be expressed the linear combination of other two. What is linear combination I am taking here? Just I am writing. Sometimes लोग क्या करते हैं कि इसी में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं कि सर जीरो आ गया। वैसे भी आप कर सकते हो। हमने यहाँ पर एक मेथड केवल बताने के लिए कर रहा हूँ कि जस्ट आई एम ट्राइंग टू राइट डाउन कि जस्ट जी स्क्वायर कैन बी रिटन एज पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई। ओके, सो पी व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? इट इज ए एम ई टू द पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू द पावर एन एक्स प्लस क्यू ए ई एम एक्स प्लस बी ई एन एक्स. And now from both the side, d square y is what? A m square e mx plus b n square e nx. इसको हम इधर ही लिख देते हैं और कंपेयर करते हैं a टू द पावर e mx का कॉम्बिनेशन. तो इधर a टू द पावर a इंटू ई का पावर mx है m स्क्वायर. ठीक है, मतलब जो हमने लेना है वो मैं कोशिश कर रहा हूँ. तो एम स्क्वायर इज व्हाट? हमारा काम है कि चूंकि जो प्रूफ करना है कि P और Q की वैल्यू निकाल देनी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P एंड Q, नथिंग एल्स. सो ए ई एम एक्स एम स्क्वायर, ए ई एम एक्स पी एम, ए ई एम एक्स प्लस Q, एन स्क्वायर एन स्क्वायर बी, तो पी एन एंड अगेन प्लस क्यू. ठीक है, अब कहोगे सर ये क्या, वो तो कुछ चीज़ है ही नहीं. यहाँ से आप बड़े आराम से पी और एन की वैल्यू निकाल सकते हो, बहुत बड़े आराम से. सोचिए कैसे निकालेंगे. देखो, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो पी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू पी एम माइनस एन, सो पी इक्वल टू एम प्लस एन. सो देख लीजिए आप, पी इक्वल टू एम प्लस एन, यहाँ जाएगा एम प्लस एन, इसको इधर लाएंगे तो माइनस आ जाएगा. एंड इसमें से किसी की वैल्यू रख दीजिए आप किसी एक में, तो एम स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एन, तो एम स्क्वायर प्लस एम एन एन प्लस क्यू कट गया, तो q इज इक्वल टू माइनस एम एन. क्यू की जगह रख दीजिए आप माइनस एम एन, ट्रांसपोज की जगह प्लस एम एन, यू कैन फाइंड द सोल्यूशन. और वैसे आप इन सब की वैल्यू इसमें वापस रखिए और सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट द सोल्यूशन ऑफ द दैट ऑल दीज थिंग्स गेट टुगेदर बिकम्स जीरो, नथिंग एल्स. सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू solve the question of miscellaneous exercise 5.7. Now we have Rawls theorem, mean value theorem and miscellaneous exercise. One question I am going to take in from miscellaneous exercise for this video, because there is no connection with Rawls theorem, mean value theorem for the solution of this very question. Question number 14 of miscellaneous exercise. X root under 1 plus y, y root under 1 plus x is equal to 0. You are required to find dy by dx is equal to minus. इसमें क्या करना है आपको कि आप पहले आप इसको ट्रांसपोज कर लो दो तरफ and then square कर लो to get the easy solution. Okay, so what we have, x square plus x square y, y square plus xy square, and then differentiate implicit function like
डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। और उसके पहले भी आप एक चीज़ और करेंगे, नहीं अभी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, एक चीज़ और करेंगे। हियर x स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर, ओके, x स्क्वायर y माइनस एक्स वाई स्क्वायर इज 0। नाउ x प्लस वाई, x माइनस वाई, एक्स वाई कॉमन, x माइनस वाई। सो यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हो x माइनस वाई, यू विल गेट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। फ्रॉम हेयर यू कैन से आइदर x इक्वल टू 0 और x प्लस y प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 डिवाइड बाई dx बिकम्स 1, ये तो हमें निकालना नहीं है, इक्वल होगा भी नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, y एक तरफ रखा इक्वल टू माइनस एक्स। सो व्हाट इज y, माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स। और अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिवाइड बाई dx, कोसेंट टूल से 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, माइनस हमने पहले लगा दिया। 1 प्लस एक्स को छोड़ा तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, माइनस x को छोड़ा तो 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी 1। तो ऊपर में क्या किया, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स और नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो माइनस एक्स कैंसिल, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो दिस वे यू कैन फाइंड द सॉल्यूशन। यहाँ से डिवाइड बाई dx इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब दूसरे वाले पार्ट से अगर आप ऐसे भी करो, यहाँ से भी डायरेक्ट कर दो, तो 1 प्लस डिवाइड बाई dx प्लस x इंटू डिवाइड बाई dx प्लस y इंटू 1, और वहाँ से जैसे इस पार्ट से भी आप कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ से इस तरह ना ले जाके, x का 1 हुआ, y का डिवाइड बाई dx हुआ, फिर x प्लस y का क्या हुआ, x को छोड़ा डिवाइड बाई dx लग गया प्रोडक्ट रूल, और y को छोड़ा 1 हो गया। तो क्या हो गया, आप देखो 1 प्लस डिवाइड बाई dx कॉमन लिया तो 1 प्लस एक्स इज इट एंड प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब y में फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आने से, कि y में फिर यहाँ रह जाएगा आपका ये चीज़, फंसा रह जाएगा। तो फंसा रह जाएगा तो दिक्कत होगी, इसलिए बेटर क्या तरीका था, कोसेंट रूल में ले जाने का। सो हर पार्ट के सोल्यूशन के लिए आपको कुछ न कुछ नया तरीका सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो आज बस इतना ही, बाकी हम लोग शुरू करेंगे तो रॉल्स और मीन वैल्यू थ्योरम के साथ साथ मिसलेनियस को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आफ्टर सम टाइम्स। इस बीच में अगर आपको कोई क्वेश्चन देना हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।